Bismillahirrahmanirrahim. Ji, dear students, today's our lecture is about the requirements of the fats in the fish diet. So, in the very previous lecture, we have talked about the general features of the fats and what kind of fats should be added in the fish diet. And a little bit we have talked about the nomenclature of the fats. That is, how can we name according to the number of double bonds which are present in the fats. Okay, so as we know that fats are very important in the diet of the fish. So fats are usually of the two types. So one is the saturated fat, second is called as unsaturated fats. Saturated fat is if we add too much saturated fats in the fish diet, so it can be problematic for the fish for the fish health and the survival of the fish. Why it will be it will be an hazardous for the fish? Because it will cause an increase in the level of LDL. LDL is low density lipoprotein. So low density lipoprotein is called as the bad cholesterol. So if you add unsaturated fatty acid in the diet of the fish, it will cause an increase in the level of HDL, high density lipoprotein. So high level of HDL, it is regarded as the good cholesterol. So let's talk about the basic chemistry behind that, why saturated fatty acid is not good for the fish. So ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि फ़िश का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर हम फैट्स उसको दे रहे हैं तो उसकी डाइट में से फॉर एग्जांपल वी आर एडिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड और वी आर एडिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाउ दीज फैटी एसिड आर बेसिकली प्रोसेस्ड इन the different tissues of the fish. Okay, so what happened? So as we know that diet contains three kinds of ingredients. Number one, the carbohydrates. Number two, the fats. Number three, they are the lipids. Okay, so number one, carbohydrates. You know well that carbohydrates they are basically digested to their simplest form, that is the monosaccharides. So here is the glucose. So glucose को अगर आप देखें, glucose can be transported along with the sodium ions. So there are the co-transporter which will transport both glucose and the sodium ions. Two sodium ions will be transported with the one molecule of the glucose. So glucose जो है वो यहाँ से इसकी intestine से इंटेस्टाइनल ल्यूमन से इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर आ जाता है. सो ये ग्लूकोज आपको जो नज़र आ रहा है, ये इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं उनमें मौजूद है ग्लूकोज. वहाँ से ग्लूकोज जो है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ब्लड स्ट्रीम आपके सामने नज़र आ रही है. सो ग्लूकोज ल्यूमन से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच गया. एंड सिमिलरली जो लिपिड्स मौजूद हैं उसकी डाइट में, सो लिपिड्स जो हैं वो जब डाइजेस्ट होते हैं दे गेट्स द शेप ऑफ अ माइसिली लाइक स्ट्रक्चर. सो माइसिली के बाद माइसिली को जब फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो उसके सेल्स में, उसके इंटेस्टाइनल सेल्स में आके फैटी एसिड बना देते हैं और मोनोग्लिसरॉइड्स बना देते हैं. सो वहाँ पे वो फैटी एसिड और मोनोग्लिसरॉल्स अलॉन्ग विद द कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लाइपोप्रोटीन वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज द काइलोमाइक्रॉन्स. सो काइलोमाइक्रॉन्स वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ उसके ब्लड सिस्टम में आ जाते हैं. सो हेयर इज द काइलोमाइक्रॉन. सो लेट मी टेल यू दैट काइलोमाइक्रॉन इज अ लाइपोप्रोटीन just like LDL and HDL. So what is the difference between LDL, HDL and chylomicron? ये आपको सामने नज़र आ रहा है. सो इसमें हमने चार मुख्तलिफ किस्म के लाइपोप्रोटीन बनाए हुए हैं, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL एंड HDL. सो ये चारों तरह के जो लाइपोप्रोटीन्स हैं बेसिकली दे कंटेन्स टू मेजर इंग्रेडिएंट्स. वन इज़ प्रोटीन, सेकंड इज़ फैट्स. इसके अलावा भी इनमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं लेकिन मेजर कैटेगरीज इनके पास प्रोटीन और फैट्स होती हैं. सो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इनके अंदर फैट्स मौजूद हैं और प्रोटीन इनके अंदर बहुत कम मौजूद हैं. उसके बाद आ गया है VLDL. VLDL में आप देख रहे हैं कि काइलोमाइक्रॉन की निस्बत प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा मौजूद है. और उसके बाद आ गया है LDL, और LDL में उस VLDL की निस्बत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है लेकिन स्टिल इसके पास काफ़ी अमाउंट में फैट्स मौजूद हैं. HDL के पास तकरीबन 50-50 पोर्शन मौजूद होता है प्रोटीन और फैट्स का. सो द डिफरेंस इज़ इन ऑल ऑफ दिस लाइपोप्रोटीन इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन.
ओके, सो लेट मी टेल यू दैट हेयर इज LDL। आप देख सकते हैं LDL के पास क्या है, प्रोटीन कम है। प्रोटीन कम है तो ज़्यादा क्या होगा, फैट्स। HDL के पास क्या है, प्रोटीन जितनी है फैट्स भी उतनी। इट मीन दैट LDL के पास अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी फैट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द प्रोटीन। दैट्स वाई LDL इज रिगार्डेड एज द बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो ये नीचे मेंशन किया हुआ LDL with high level of cholesterol, so it is bad. HDL with low level of cholesterol and high level of protein is considered to be the good. Okay, so वापस आते हैं तो काइलोमाइक्रोन जो है ये एक लाइपोप्रोटीन है जो कि बनता है फैटी एसिड से, मोनोग्लिसरॉल से और कोलेस्ट्रॉल से। ओके, अब नेक्स्ट ये ग्लूकोज और काइलोमाइक्रोन्स ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वहाँ से इनका पाथवे जो एंटर होता है डेट इज टुवर्ड्स द लिवर। ओके, सो ग्लूकोज जो है ये एक रिसेप्टर्स के थ्रू होता हुआ लिवर में आ जाता है और लिवर में ग्लूकोज से पायरोवेट बनाया जाता है और पायरोवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनाया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर जो है वो लिवर के अंदर चेंज हो जाता है इनटू द कोलेस्ट्रॉल। सो हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है, सो ये उसके कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस का पाथवे है। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम को चेंज किया जाता है मेलोनाइल कोएंजाइम में और मेलोनाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड तैयार किए जाते हैं, जबकि इससे पीछे ग्लूकोज से ग्लिसरॉल बनाया जा सकता है और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो गोल्जी apparatus में प्रोसेस होते हैं along with some of other apoproteins. So triglycerides and apoprotein they unite within the Golgi bodies and to form a structure called as lipoprotein. This lipoprotein is VLDL, this is HDL, this is LDL. So different kinds के lipoprotein हो सकते हैं. Okay, let's talk about the first one, VLDL. तो ये गोल्जी apparatus से जो लाइपोप्रोटीन लिवर तैयार करता है, ये फर्स्ट कैटेगरी जो तैयार करता है डेट इज VLDL, डेट इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL में हम जानते हैं कि इसमें प्रोटीन कंटेंट्स कम है और फैट्स के कंटेंट्स ज़्यादा हैं। इसका बेसिकली इसका जॉब क्या है, टू ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड टू द बॉडी टिश्यूज़। सो बॉडी टिश्यूज़ को फैटी एसिड चाहिए क्योंकि उन्होंने फैटी एसिड से अपना मेटाबॉलिज्म रन करना है या अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स की बायोजेनेसिस करनी है। सो VLDL क्या करेगा, it will collect lot of fatty acid from the blood and it will transport the fatty acid to all of the body tissues which will demand for the fatty acid. So there is an enzyme called as lipase. Lipase will break down those fatty acid और वो जब break down हो जाएंगे, separate हो जाएंगे VLDL से, तो वो fatty acid absorb हो जाएंगे body tissues में। जब फैटी एसिड उतर जाते हैं VLDL जो है वो चेंज हो जाता है इनटू IDL, दैट इज इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। IDL की जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, किसके इंटरमीडिएट होती है, VLDL के और LDL के। सो VLDL और LDL दोनों के इंटरमीडिएट में होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड IDL। IDL दोबारा लिवर में जाता है और लिवर में इसको चेंज करके फिर बना दिया जाता है LDL, दैट इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं जबकि फैट्स के कंटेंट्स ज़्यादा, प्रोटीन कम होती है जबकि फैट्स के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। सो LDL का काम क्या है, इट विल ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द बॉडी टिश्यूज। VLDL ने ट्रांसपोर्ट किया था फैटी एसिड को, LDL जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को। सो ये कोलेस्ट्रॉल को पिक करेगा ब्लड में से एंड विल ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल टू द बॉडी टिश्यूज, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी लेगी, बॉडी के टिश्यूज लेंगे और वहां से वो हार्मोन्स तैयार कर सकते हैं या वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को तैयार कर सकते हैं। ओके, जब LDL अपना जॉब कंप्लीट कर चुका होता है, LDL यहाँ से फिर मूव करता है टुवर्ड्स द लिवर और स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं LDL रिसेप्टर, और LDL रिसेप्टर पे अटैच होते हैं LDL और ये लिवर के अंदर चला जाता है जहाँ पे से इसको तोड़ के दोबारा इसी स्कीम में से नए लाइपोप्रोटीन तैयार करने में इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। या ये LDL को ब्रेक डाउन करके जो है ये इसके जो ब्रोकन कंपोनेंट्स हैं वो ब्रोकन फैटी एसिड हैं, वो कोलेस्ट्रॉल हैं, वो बाइल की मदद से बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं अगर उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड लास्ट वन, द इम्पॉर्टेंट वन कंपोनेंट इज HDL। HDL द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी लिवर तैयार करता है, लिवर तैयार करके HDL के मॉलिक्यूल्स को ब्लड में फेंक देता है। अब HDL का काम क्या है, इट विल ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू लिवर। HDL जितना ज़्यादा होगा
तो क्या करेगा, ये ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल निकाल के लिवर को फेंक देगा। सो इट मीन्स दैट अगर आपके ब्लड में HDL का लेवल कम है तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपके ब्लड में HDL ज़्यादा है तो जितना HDL ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के लिवर के पास ले जाएगा, आपका ब्लड जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री कर देगा। और जितना कम कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में होगा सो डेफिनेटली वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचा के रखेगा। सो HDL का काम क्या हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल को पकड़ेगा और बाउंड करेगा अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से, और ब्लड उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर HDL रिसेप्टर पे जाएगा और कोलेस्ट्रॉल को मूव करवा देगा टुवर्ड्स द लिवर। Okay, so these are the general highlights about the saturated and unsaturated fatty acid. So जो हम फैट्स हम दे रहे हैं, say for example अगर हम डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड दे रहे हैं और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा उसके लिवर में आ रहे हैं, तो ये जहन में हम रखेंगे कि उसमें HDL पैदा नहीं होगा जबकि LDL की अमाउंट ज़्यादा होगी। और हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा LDL की अमाउंट ज़्यादा होगी तो LDL क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पकड़ता है। तो इट मीन दैट कि ये कोलेस्ट्रॉल को, कुछ कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज़ को, जबकि बाकी कोलेस्ट्रॉल ये अपने पास रखता है। अगर LDL का लेवल बढ़ता जाए सो मॉलिक्यूल्स LDL के जिनके पास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एग्रीगेशन होती है और वो ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ स्टक होना शुरू हो जाते हैं। द कंडीशन कॉल्ड एज प्लैक फॉर्मेशन। और जब प्लैक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है सो डेफिनेटली इट कैन कॉज द हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा देंगे तो LDL बढ़ेगा, LDL ज़्यादा देंगे तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो प्लैक ज़्यादा आएगा, प्लैक ज़्यादा आएगा तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड को कम अमाउंट में डालना चाहिए। इसी तरह अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा डालेंगे तो इससे HDL ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा HDL ज़्यादा होगा ये आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को आपके लिवर में पहुँचा देगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाएगा। दैट इज़ गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल for the fish diet. Okay. अब चलते हैं आगे जी। अब फ्रेश वाटर फिश और मैरीन वाटर फिश, इनके लिए जो है फैटी एसिड रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपके सामने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखे हुए हैं। फ्रेश वाटर फिश है तो इसको चाहिए लाइनोलिक एसिड एंड लाइनोलैनिक एसिड। लाइनोलिक एसिड एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जबकि लाइनोलैनिक एसिड एक ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मैरीन वाटर फिश को दो फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है उसके लिए, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये है कि इनको उनकी डाइट में मौजूद होना चाहिए। अगर ये डाइट में नहीं होंगी तो इससे उसके अंदर स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। सो मैरीन फिश के लिए आइकोसा पेंटोइक एसिड एंड डोकेजा हेक्सानोइक एसिड, ये दोनों 20 और 22 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों ओमेगा 3 हैं। सो ये मॉलिक्यूल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये फिश की डाइट में मौजूद होने चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो उनमें डेफिशिएंसी आएगी। से फॉर एग्जांपल अगर एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी आ जाए तो उसमें स्किन लाइन्स आ जाएंगे, शॉक सिंड्रोम आएगा, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो कम पड़ जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। सो एसेंशियल फैटी एसिड को फिश की डाइट में मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ फैट्स इन द डाइट। फैट्स जो हैं वो फिश की डाइट में मौजूद होने चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, क्या होता है अगर हम फैट्स को डाइट में शामिल कर देंगे? ऑप्टिमल रेशो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन। देखें इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें कि फैट्स कितनी कंपोनेंट्स होते हैं फिश को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है फिश के लिए, फिश की ग्रोथ के लिए? वो होता है प्रोटीन। हमने एक ऐसी डाइट फार्मुलेट करनी होती है फिश के लिए जिसकी वजह से प्रोटीन उसकी ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में जाए, जबकि उसकी प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में कम टूटे। अगर प्रोटीन ज़्यादा टूटती रही एनर्जी प्रोसेस के लिए तो डेफिनेटली फिश का ग्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, प्रोटीन को स्पेयर रखने के लिए हम डालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एक गिवन अमाउंट में और फैट्स। तो अगर हम फैट्स को एक गिवन अमाउंट में डालेंगे तो फिश क्या करेगी, एनर्जी लेगी बाय ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फैट्स।
सो जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को तोड़ेगी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। अब जो प्रोटीन बच जाएगी तो वो सारी की सारी प्रोटीन वो कोशिश करेगी कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में बढ़ाए, अपना वेट गेन करने के लिए उस प्रोटीन को यूज़ करेगी। सो अमाउंट होनी चाहिए, गिवन अमाउंट फैट्स की होनी चाहिए। सो उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो स्पेयर पड़ जाती है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फैट्स को अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा ही स्पेयर कर दें, किस तरह कर सकते हैं कि हम फैट्स बहुत ज़्यादा डाल दें। सो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फैट्स की अमाउंट भी एक ख़ास वैल्यू से आप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स जो हैं वो डाल देंगे वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फ़िश के लिए। क्योंकि नंबर वन क्या हो सकता है, इट विल कॉज रिड्यूस्ड इनटेक। अगर आप ऐसी फीड देंगे फ़िश को जिसमें फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो फ़िश जो है वो खाएगी नहीं, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है। अगर हम ह्यूमन पे भी देखें, अगर हम ऐसी फूड खाएंगे जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, सो डेफिनेटली हम एक मरतबा खा लेंगे, सो दूसरी मरतबा हमें हंगर एपिटाइट जो है वो उस तरह की फीलिंग्स नहीं आएगी, बिकॉज फैट्स जो है इसको हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगी, सो आपके लिवर में, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हंगर पैंग्स नहीं बनेंगी, सो आपके अंदर थ्रस्ट नहीं होगी फूड के लिए। सो थ्रस्ट नहीं होगी, सो डेफिनेटली ये एक बैड इम्पैक्ट हो सकता है फिश की हेल्थ के ऊपर। सो फैट्स को ज़्यादा डालने से उसकी ओवरऑल फीड की जो इनटेक है वो कम हो जाएगी, वो कम खाएगी खाना। दूसरा ये है कि एक्सेसिव डेपोजिशन हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा फैट्स डालते हैं और वो इंजेस्ट कर रही है, वो डाइजेस्ट भी कर रही है, सो वो फैट्स क्या है वो उसके ब्लड में जाएगी, ब्लड से उसके टिश्यूज़ में ज़्यादा उसमें फैट्स आ जाएंगी। सो हमें ऐसी फिश चाहिए जिसमें प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा हों, जबकि फैट्स के कंटेंट ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम फैट्स के अमाउंट को ज़्यादा डालेंगे। सो एक गिवन अमाउंट डालनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि फ्रेश वाटर है या मैरीन है, और इनकी भी फर्दर हर एक स्पीशी की एक गिवन रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें वो जुवेनाइल साइज पे है, वो अडल्ट साइज पे है, वो स्पॉनिंग में है, वो ज़िंदगी में वो किस स्टेज पे है। तो उस लिहाज से उसकी डाइट को फार्मूलेट करके बताया जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, फैट्स कितनी होनी चाहिए, और प्रोटीन्स कितनी होनी चाहिए। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू मे आस्क एनी टाइम, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।